Hey everyone, in this question we have been asked that which one of the following statements would help, which one of the following conditions given below will help in the prevention of diuresis. So let us first see कि diuresis is basically the excretion of urine. ठीक है, this is the excretion of urine, the formation and excretion of urine. Now यूरिन के फॉर्मेशन के वक्त कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. लेट अस फर्स्ट डिस्कस द हार्मोन्स. सो देयर इज दिस मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज द रास मैकेनिज्म और द रास सिस्टम. RAAS, which is renin, angiotensin, aldosterone mechanism और सिस्टम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द रास मैकेनिज्म. नाउ व्हाट हैपेंस, जो जेजी सेल्स होती हैं, जो जेजी एपेरेटस होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं जेजी सेल्स. ठीक है, द जेजी सेल्स प्रेजेंट इन द जेजी एपेरेटस, these cells have basoreceptors. ठीक है, इनमें basoreceptors प्रेजेंट होते हैं which detect. ठीक है, these have basoreceptors और ये जेजी सेल्स क्या करती हैं, it helps in the regulation of blood pressure by the secretion of hormone which is called as renin. Please remember the spelling of renin over here because it involves only one n. ठीक है, now what happens, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है डिक्रीजेस. ठीक है, as soon as the glomerular blood flow decreases, when the glomerular blood flow, or which can also called as glomerular blood pressure, when it decreases, it leads to the decrease in the glomerular filtration rate. ठीक है, जो glomerular GFR होती है decreases, this decrease in the GFR leads to the stimulation of GG cells. ठीक है, जैसे ही GFR कम होता है तो क्या होती है, जो जेजी सेल्स होती हैं, जेजी सेल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं एंड ड्यू टू विच लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन रेनिन. ठीक है, it leads to the secretion of renin. This renin acts on angiotensinogen which is an inactive plasma protein. ठीक है, लिवर से एक प्रोटीन रिलीज होता है which is inactive. ठीक है, जो लिवर से प्रोटीन रिलीज होता है, inactive protein, which is एंजियोटेंसिनोजन. ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन is an inactive plasma protein. It is a inactive plasma protein. ठीक है, this renin, ये जो renin होता है, this renin acts on angiotensin and converts angiotensinogen into angiotensin 1. ठीक है, it converts the angiotensinogen into angiotensin 1. Now from lungs an enzyme is released which is called as, लंग से एक एंजाइम रिलीज होता है, लिवर से कौन सा एंजाइम रिलीज हुआ था, एंजियोटेंसिनोजन. ठीक है, वैसे ही लंग से एक एंजाइम रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम. ठीक है, ACE और एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम. ठीक है, ये लंग से रिलीज होता है और ये क्या करता है, इट अलाउज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to angiotensin 2. This angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 via the enzyme ACE, that is the angiotensin converting enzyme which is produced by lungs. ठीक है, now this angiotensin 2 involves 4 functions. ठीक है, सबसे पहले ये angiotensin 2 जो होता है डायरेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है. इट हेल्प्स इन डायरेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का बेसिक मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, these blood vessels will become narrow, and due to the decrease in the diameter, these blood vessels will become narrow, and due to the decrease in diameter, the blood pressure will increase. ठीक है, second one is, जो सेकेंड फंक्शन होगा एंजियोटेंसिन 2 का, वो ये होता है, इट स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस. ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, इट स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस
एंड ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जो हमारा जो थर्स्ट सेंटर होता है इट गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। हमें पानी की प्यास लगती है, द थर्स्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस गेट्स एक्टिवेटेड। सो जब हमें पानी की प्यास लगेगी तो विल ड्रिंक वाटर, ठीक है। एंड एज सुन एज वील ड्रिंक वाटर द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, blood volume will increase due to the intake of water which will lead to the increase in the blood pressure eventually, ठीक है। the third thing which will happen, the third thing is the stimulation of adrenal cortex, ठीक है। जो adrenal cortex होता है in the adrenal gland, adrenal cortex will be stimulated, ठीक है। adrenal cortex का भी कौन सा वाला पार्ट, the zona glomerulosa will be stimulated and from here the mineralocorticoids will be released, ठीक है। this will lead to the release of mineralocorticoids. these mineralocorticoids ये क्या करेंगे, these mineralocorticoids will absorb mineralocorticoids में जो सबसे मेन होता है which is aldosterone, ठीक है। ये जो aldosterone एंजाइम होगा, this aldosterone enzyme which is released from the zona glomerulosa of the adrenal cortex will lead will allow or will stimulate the formation or the absorption of sodium and chloride, ठीक है। it will stimulate the absorption of sodium ions, chloride ions from the DCT, that is the distal convoluted tubule of the nephron, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा concentration gradient develop, it leads to the development in the concentration gradient in the nephrons and due to this concentration gradient जैसे ही salt या फिर जैसे ही NaCl absorb होगा it will eventually lead to the absorption of water, ठीक है। water absorption will also occur and as soon as the water absorption will occur the blood volume will increase and thereby the blood pressure will increase. The fourth thing that angiotensin 2 will do is the stimulation of posterior pituitary, ठीक है। it will stimulate the posterior pituitary, जो पिट्यूटरी होती है उसमें दो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको जो एंजियोटेंसिन 2 होगा वो स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन और ADH, दिस विल बी रिलीज्ड. This hormone will help in the absorption of water. This will help in the absorption of water from the collecting duct of neurons. ठीक है, and thereby leading to the increase in the blood volume. Blood volume will increase and therefore the blood pressure will also increase. Now, the main thing over here is जैसे ही हम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, डायूरेसिस मतलब होता है यूरिन का निकलना एंड वाटर अगर हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन डायूरेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। द वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द डायूरेसिस, ठीक है। Now let us go to the options one by one. The first one is decrease in the secretion of renin by Golgi cells. ठीक है, तो क्या होगा कि as we have seen जो renin होता है, renin जैसे ही secrete होता है eventually it leads to the water absorption in the different parts of nephron and thereby preventing the diuresis. तो यहाँ पे लिखा है कि जो renin होगा, अगर renin को decrease कर देंगे, जब renin ज़्यादा होता है तो water absorption ज़्यादा होती है और डायूरेसिस कम होगी, लेकिन जब रेनिन को हम कम कर देंगे, व्हेन रेनिन विल बी डिक्रीज, द अमाउंट ऑफ रेनिन विल बी डिक्रीज, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिसकी वजह से, ठीक है, अगर रेनिन कम आएगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी लेसर एंड देयर बाय
डायूरेसिस विल नॉट बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो जो यूरिन सिक्रीशन होगा हमारी बॉडी से वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमसे प्रिवेंशन पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। द सेकंड वन इज मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। नाउ एज वी हैव सीन कि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है तो डायूरेसिस कम होती है, ठीक है, या फिर यूरिन फॉर्मेशन कम होती है। तो जो ये तो सही है, लाइक हाफ ऑफ द पार्ट इज करेक्ट, ठीक है, मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे जो रीजन दिया है वाटर रीअब्सॉर्प्शन के कम होने का वो दे रखा है अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन। हमने देखा था कि जो एडीएच हार्मोन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। दिस एडीएच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इट इंक्रीजेस द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कम नहीं करता, ठीक है। तो अगर एडीएच जो होगा, अगर एडीएच अगर कम निकलेगा, इफ दिस एडीएच विल बी विल नॉट बी सिक्रीटेड, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी नहीं। सो देयरफॉर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एडीएच जो होता है उसके ज्यादा सिक्रीशन से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और उसके कम सिक्रीशन से वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज reabsorption of sodium and water from the renal tubules due to aldosterone. So as we have seen in the RAS mechanism earlier कि जो reabsorption of sodium होगा, जैसे ही जो एल्डोस्टेरोन होती है वो रिलीज होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो पीसीटी जो डीसीटी है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है और नेफ्रॉन में, वहां पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जैसे ही सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू द चेंज इन concentration gradient, and to maintain the concentration gradient water will also be absorbed after the sodium and chloride. So therefore जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो NaCl एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से वाटर रिअब्जॉर्ब होगा, और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है हमें पता है कि यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाती है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज, in the last option it says the atrial natriuretic factor causes vasoconstriction. ये जो atrial natriuretic factor होता है, this factor is released from the heart cells. ये heart cells release होता है, it is called as atrial natriuretic factor, ठीक है। as the name suggests ये क्या होता है, it is natriuretic, that is this hormone decreases the blood pressure. ये हार्मोन ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है बाय डायरेक्ट वेसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेसोडाइलेशन मतलब क्या होता है, वेसोडाइलेशन बेसिकली मींस जो नैरोअर ब्लड वेसल्स होंगी उनका डायमीटर इट विल बी इंक्रीज एंड दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। आई एम सॉरी, दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, क्योंकि डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज जाएगा। नाउ ब्लड प्रेशर डिक्रीज मतलब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, एंड एज वी हैव सीन वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो डायलिसिस प्रिवेंट नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट ANF डज। नाउ हियर इट इज रिटन द atrial natriuretic factor, that is ANF, causes vasoconstriction. So this statement here becomes an incorrect statement because it does not causes vasoconstriction, rather it causes vasodilation, and also it does not prevent diuresis. ये diuresis करवाता है, prevent नहीं करता, ठीक है। So according to the following given discussion, जो भी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग we had to find the statement, or we had to find the condition which help us in preventing the process of diuresis, and the correct option would be the option number 3rd, that is the reabsorption of sodium and water from renal tubules due to the secretion of aldosterone. So I hope this was useful for you. Thank you.